مرزا جیلمی جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے۔ توہین رسالت پر مشتمل ہے اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا۔ کہ آج کل وہ مرزا جیلمی جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے، ویسا مرزا جیلمی اور مودی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی بغیرت مودی رات کو چھپ کر حملہ کرتا ہے اور سامنے نہیں آتا ہماری پاک فوج کے لوک لوک کے حملے کرتا خسرا، اور اسی طرح مرزا بھی کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ساڈے سامنے نہیں آتا خسرا۔ مرزا آج ہمت اعتبار تینوں تاریخ سے مرزا محمد علی جیلمی جو ایک عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئے روز ایسی جارحانہ اور گھٹیا انداز سے انتہائی گستاخانہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے پوری پاکستان کے مسلمان پچھلے اتنے عرصے سے شدید پریشانی کا شکار ہیں اور شدید جناب دل آزاری ان کی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایک اکیڈمی کے کمرے میں جس کو جناب چاروں طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سیکورٹی دی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر کے کھلے دل سے یہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر یہ شیطانی اور شرارت کر رہا تھا، تو اب اس کو گرفتار گورنمنٹ نے کیا ہے۔ اور یہ بغیرت آدمی میں نے زندگی میں پہلی بار میں اس کو گالی دی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دلوائی ہیں، اپنے لوگوں سے میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے۔ اس نے مجھے اچھے سے گالیاں دلوائی ہیں، میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے، لیکن اس سے میں کم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیرت آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ دیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ جھاگ جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھونکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ ایک انجینئر ہے مرزا، وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، بلڈنگیں بنائے، اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ وہ انجینئر ہے نا، انجینئرنگ کرے، یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ پہ آ کے ائمہ اربعہ کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے۔ وہ انجینئر بنا ہوا کیا، وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر، کبھی کہتا ہے میں مولوی نہیں، پتہ تو ہے اس کو خود بھی پتہ نہ کیا ہوں، کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے۔ ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کرے، مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ انجینئر مرزا علی جہلمی رافضی کر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی، اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے، حدیث تو درست ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے۔ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے۔ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلمی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا، تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟
ये फैलाई जा रही हैं चीजें। इसका उस्ताद ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने सुनी सुनाई है तर्जमे वाली किताबें खोल के देख के स्पीकिंग उसकी पावर है, बोलने का मलका है, सलाहियत है, वो बोल रहा है और आप सुन रहे हैं और उस पर आप मसलक और मनज और अकीदा बना के बैठ गए हैं, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो खुद गुमराह है, वो तुम्हें कैसे हदायत पर लाए। कल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के, तू मर जाना अपने कमरे च बैठे बैठे कीड़े कट कट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। जेहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए ज़माना इंसान जो उनके बारे में हरजा सराई करता है, उनके बारे में बकवासियात करता है, उनकी ज़ात को बदतबर्रा करता है, उनकी ज़ात को दानो तशरीह का निशाना बनाता है। हज़रात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है? क्या चांद के ऊपर थूक देने से चांद कदला हो जाएगा? नहीं नहीं, तेरी थूक जो है वो तेरे मुंह के ऊपर आके गिरेगी। हज़रात गिरामी का हर मुहिब रसूल तेरे पे थूकेगा, हर मुहिब सहाबा तेरे पे थूकेगा, हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के ऊपर थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हज़रात गिरामी का झूठा है, या कज़्ज़ाब है, या मक्कार है, या दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है। ये कहता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब और सारी उम्मत के अकाबिर के खिलाफ भौंकता है। अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं, अहले सुन्नत में से अपने करीने तैयार करते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफ़ज़ियत के गंदे रुतबे होते हैं और सहाबा की मुबारक हस्तियों पे अपनी नापाक गंदी पलीद जुबानों को दराज करते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था, इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है जो सहाबा की पाक हस्तियों को अपनी गंदी पलीद नापाक जुबान से लोगों के सामने उनकी हैसियत को खराब करने के लिए राफ़ज़ियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है और हकीकत में इसका मन पलीद है, इसके मानने वाले इससे बड़ा पलीद है। जो इंजीनियर अली मिर्जा है ये नीम राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी वो जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं और ये शिया का एजेंट है, इससे दूर रहना चाहिए। कि मिर्जा जेलमी के घर के साथ कादियानी रहते हैं और इसके अबू जो काम पे चले जाते थे वो कादियानी से घर आते थे। मिर्जा जेलमी कादियानी की नस्ल से है और नुत्फ़े हराम से है। और मिर्जा जेलमी बोलेगा कहां से चले गए? कुत्ते दे दिमाग में पाँव तो सिवा कख नहीं, कुत्ते दे दिमाग में पाँव तो सिवा कख नहीं आंदा, कख नहीं आंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। वो इंजीनियर अली मिर्जा के लिए कोई ऐसा सबूत है जो दीन के खिलाफ है, आप जाएं थाने में पहले FIR कटवाएं कि ये शख्स फसाद फैला रहा है। इंजीनियर मिर्जा अली हर किसी भी बोलता है अंदर राफ़ज़ी शिया है और लिस्ट ले आके बैठ जाता है। मसला नंबर 191B, 191A, 191C। इंजीनियर है ना, ABCD पढ़ के आया है ना, ABCD पढ़ के आया बेवकूफ। आज मुस्लिम टीवी कादियानियों का खुला हुआ, उसके ऊपर जी कौन आ गया जी? अली भाई आ रहे हैं, अली भाई। ये खुशी की बात है, ये बदबख्ती की बात है। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कातिलाना हमले में जख्मी हो गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज जेहलम में हफ्तावार लेक्चर के दौरान हमलावर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर चाकू से वार किया, जिससे मोहम्मद अली मिर्जा के बाजू पर मामूली जख्म आया। इसमें अर्ज कर दूं कि ये बाज लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात हो वाक़यात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाएं, ये कर दें। मेरे भाई ये आप किसी इस ज़ौम में ना रहिएगा, मुल्क छोड़ के क्या ये लोग सब कुछ छोड़ के जाएंगे? ये इनके बाप का मुल्क है कि छोड़ के चले जाएं? इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का, ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये ठंडे वो पैदल हैं जो अवाम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से रोटी खिलाते हैं, वो ऐसे नहीं होते। ये गरीब नवाज जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ये नहीं होता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको वास्ता किस बंदे के साथ डाला है, अभी तक नहीं पता चला आपको। तो अल्लाह के फजल से हमसे सारे मुत्तफिक हैं, अहले हदीस हमारे साथ मुत्तफिक हैं कि रफ़ुल दैन का मसला बिल्कुल सही बयान करता है। बरेलवी हमारे साथ मुत्तफिक है कि जो उसामुल अरमैन में आला हज़रत ने इबारतें हाईलाइट की थी जो बंदियों की गुस्ताखाना, वो हाईलाइट करता है, बिल्कुल ठीक करता है। जो बंदी हमारे साथ मुत्तफिक है कि बरेलवियों की गुस्ताखाना इबारतें निकालता है, बिल्कुल ठीक निकालता है। और शिया हमारे साथ इस हवाले से मुत्तफिक है कि जो हज़रत अली की शान में और अहले बैत के दिफा में और आले उमैया के खिलाफ हदीसें बुखारी मुस्लिम से पेश करता है, बिल्कुल ठीक करता है। जहां पे इख्तिलाफ आता है फिर उन बातों में आता है जिसमें उनकी दुम पे पांव पड़ रहा होता है, और सर एक की दुम पे पांव पड़ रहा होता है तो दूसरे के गले में हार पड़ रहा होता है। ये हकीकत बात है।
रफल दैन के मसले में अगर देवबंद और बरेलवियों की दुम पे पांव आ रहा होता है ना, तो अहले हदीस के गले में हार जा रहा होता है। और आले उमैया की बदमाशियों में जब हम बात करते हैं और मौला अली पे जो सबो शतम करवाते हैं, इस मामले में अगर अहले हदीस की दुम पे पांव आ रहा होता है ना, तो शिया की गदरों में हार जा रहा होता है। और जब हम तौहीद के ऊपर बात करते हैं और हम कहते हैं कि मौला अली का मतलब ये नहीं कि या अली मदद कहो, अल्लाह को पुकारो, मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, तो इससे अहले हदीस के गले में हार जा रहा होता है और शिया की दुम पे पांव जा रहा होता है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम बरेलवी होना है, अगर गुलूफ के दर्जे में ना हो तो मैं बरेलवी हूं। अगर सहाबा किराम के दिफा का नाम देवबंदी होना है, गुलूफ के दर्जे में ना हो, मासूमियत क्लेम न कर दी तो मैं देवबंदी हूं। अगर किताब सुन्नत को मानने का नाम अहले हदीस होना है, और ये मेरे आने से पहले वाले अब तो किताब सुन्नत से हट चुके हैं, तो मैं अहले हदीस हूं। और अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम गुलूफ के दर्जे में अगर ना हो, जिसमें सहाबा किराम पे सबको शतम न किया जाए, खुलफाए सलासा की तौहीद न की जाए, जिस तरह के ईरान में बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें मामला, इसका नाम शिया होना है। शिया ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं तो जो हूँ आप क्या कि नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। कि द डैमेज हैज बीन डन। जो मैं अपनी जिंदगी में आपके फिरकों के साथ कर सकता था ना, वो मैं आज की डेट में कर चुका हूँ। जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फिरकों को, वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी जिंदगी या मेरे मुल्क में रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं।